शर्मा, आवाज आ रही है सर मेरी? यस आ रही ठीक है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं सी राजकुमार बागड़ा, मॉडरेटर ऑफ टुडे सेशन। आप सभी का जयपुर ब्रांच ऑफ CIRC ऑफ ICI की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जयपुर ब्रांच के चेयरमैन सी अनिल यादव जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आपके सामने उपस्थित होने की अपॉर्चुनिटी दी और हम सभी के लिए एक अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया इस पूरे कोरोना काल में। आज का हमारा टॉपिक है फेसलेस असेसमेंट एंड अपील्स, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऑन दिस टॉपिक वी हैव वेरी एमिनेंट स्पीकर सी मुकेश सोनी जी। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सी अनिल यादव जी, चेयरमैन ऑफ जयपुर ब्रांच, फॉर वेलकम एड्रेस। Thank you so much, Rajkumar ji. Respected Mukesh Soni sir, our today's speaker, my younger brother Rajkumar Bagra ji, and all the members present here. A very good evening to all of you. I see Anil Kumar Yadav, Chairman of Jaipur Branch, welcoming you all in today's webinar. Friends, today we have webinar of faceless assessment and appeal, the threat or opportunities for chartered accountants. व्हाट इज हैपनिंग कि सम चीज जितनी चीजें वो कह रहे हैं अगर फेस असेसमेंट आ गया है, बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये होगा होगा, बट आप यकीन मानिए कोई भी चीज आई है तो एज ए अपॉर्चुनिटी ही हम लोगों को ग्रैब करनी है। आप मान लीजिए कि स्ट्रेस है या जो है बाकी चीजें मुकेश सर इसको कवर करेंगे, तो प्लीज बी पॉजिटिव, सब चीजें अच्छी होंगी। और सेकंड में एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा वापस से, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोरोना भी गया नहीं है, आप लोग सेफ रहें। अगर आपको जरूरी हो तो ही आप लोग अपना ऑफिस ओपन करें, अदरवाइज घर से भी सब काम हो सकते हैं, तो कोशिश करें जितना हो सकता है घर से काम करें। और अगर आप इनकेस अगर आप ऑफिस से काम कर रहे हैं तो मिनिमम स्टाफ के साथ में और क्लाइंट को जितना अवॉइड कर सकते हैं, ऑनलाइन जिनसे डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, उस हिसाब से प्लीज आप लोग वो रखें। और आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी ड्यूरिंग द सेशन तो आप चैट बॉक्स के अंदर राजकुमार जी को या एडमिन सर को या मुझे किसी को भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई रहती है तो रेज हैंड का ऑप्शन अभी भी कुछ मेंबर ने रेज हैंड किया, तो प्लीज जब सेशन एंड हो जाएगा तब आप रेज हैंड करिए, देन हम आपको अनम्यूट करके देन आप डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राजकुमार जी। थैंक यू अनिल जी फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। वैसे तो CA मुकेश सोनी जी जयपुर से ही हैं, तो जयपुर वाले तो सब जानते ही हैं इनकी एक्सपर्टीज के बारे में। फिर भी मैं इनका इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये मुकेश सोनी जी, ही इज FCA LLB and DISA. He is associate partner at Tiramrit Legal LLP, having expertise on direct tax issues. He have rich experience for appearing before educating authorities and appellate authorities like AO, ITAT, CIT appeals, ITSC, etc. He have particular experience in search and survey proceeding under black money and Benami laws. He is All India ranker in CA final examination and also got Taxman Award for securing All India highest marks in direct taxation. Without wasting of time, now I would like to invite CM Mukesh Soni ji to address it. Over to you, sir. Thank you, Rajkumar ji. I think I am audible. Yes, sir. Audible. So I just share my screen and start the deliberation. And hello. Yes, sir. I am audible now. Yes, audible. Vande Ma Sharda, respected Chairman Mr. Anil Khandelwal ji, respected branch members and members of the CA community who have joined virtually. Thanks to the technology and thanks to the social distancing norms. So because of which we are connected to more connected virtually. Rather, I should say we are connecting more virtually these days rather than we have to be used to be even physically when there were no social distancing norms. So with these words,
It's always been an honor and privilege that you share your thoughts or seek the inputs from the members about the new scheme, new changes that have been made into the law, and how it is going to affect the professional life, even the work culture, or I should say the dynamics of the professional life. So it is said that change is inevitable. I quote Shri Krishna. He said in Gita, "Parivartan in is sansar ka niyam hai. Parivartan ही संसार का नियम है." So all the times we have to be ready to grab the opportunities from the changes and that face the challenges or convert the threats or the challenges into the real opportunities from the new changes that have been made, whether in our life, whether in our personal life or in the professional life. With these words, I start my deliberations on the today's topic, which is seamless, painless, and of course technologyless, and at last it's a faceless. But I should say, but it is not a voiceless. To begin with, the faceless assessment in India, it is not a affair or declared in a last 1 month only. That there has been a journey so far to bring this into the reality. The government has been taking all the steps to declare their intent that they want to eliminate the human intervention or I should correct myself, human contact while dealing with the assessment proceedings of an assessee. Of course, this time the announcement was made on 13th of August 2020, a month before. But this time, Honorable Prime Minister, of course, not made the announcement on the 8 p.m. in the night, but he made the announcement in around 11 a.m. in the morning. So the journey that has traveled from today we are witnessing as a faceless assessment, or we would be rightly witnessing faceless appeals soon. It has a background. It is not that the Prime Minister on 13th August said that because I want to honor the honest taxpayers, I am bringing this faceless scheme. The journey of technology as well as the faceless assessment schemes or faceless assessment has a track record. I have explained this in my first slide. Initially, in 2007 itself, around the online filing of ITR was made compulsory for certain assessee, and later it was made compulsory for all the assessees. Right now, even this is compulsorily except a digital signing of the return, which has certain exclusion for certain assessees. This has happened in 2007, and government started collecting the data in the database, in their database. Thereafter, there has been the need for processing of the returns automatically or processing through a separate dedicated center, which is called CPC, Central Processing Unit or Central Processing Center, established in Bengaluru. So today, even today, we have not seen who is the face behind CPC. Thereafter, the assessments, first assessment, that is the intimation 143(1)(a), that has become faceless after filing your return of income itself. These are the primary adjustments, which are basically the apparent mistakes or the apparent calculations or arithmetical adjustments in your return, which is being done merely on the basis of your data and the logics of the system, whether your data is correct or not. Now, thereafter comes the cases of selection of the cases. The department way back in 2000 or 2010, they have selected 2004 itself. They have selected the cases. They have used the technology called computer assisted selection of scrutiny assessment, CAS. On the basis of that only, they are selecting the cases. They have been selecting the cases for scrutiny, although the ratio of their selection was initially
3 to 4%, and now it is only 2% only. Thereafter, government said that, okay, this computer assisted scrutiny assessment would not help us. Therefore, they given the respective criteria for manual selection of the cases of certain assessee by the respective jurisdictional assessing officer. Then, considering the need of the hour and with the changes in the development in 2015-16, they came up with the scope of limited scrutiny and complete scrutiny to reduce the cost of compliances. The cost of compliances were reduced to for the sake that they made that only on the limited points only we would verify your returns. We will not go for the complete scrutiny. So it will reduce the cost of compliance, and only wherever we have some apprehension or mismatch of the information which we are receiving on the basis of 26 years or the annual information return, we will verify that details only, and that is called limited scrutiny. And afterwards, they have also to plug the loopholes to stop the leakages in the revenue. They said that we would also have the scope of limited scrutiny, but at the same time, we would give the power to assessing officer in the certain circumstances to convert the limited scrutiny case to a complete scrutiny case after obtaining requisite sanctions, and due process of law has to be followed for conversion of a limited scrutiny into a complete scrutiny. This was the effort made till 2018-2019. Thereafter, by Finance Act 2018, and before that, in the March 2017, the government made that we would make the filing of appeals before the first appellate authority, that is CIT appeal, online. So the initiative that was taken in 2007 started with online filing of ITR. It ended with, it also taken a step to filing of form number 35 online also. And there has been a cases at that time also, it was a apprehension that now there would be a less work, or there would be some threats to the profession, because it is an art of drafting the grounds of appeals, and we are not supposed to be caught by the technical glitches that are coming. Even that was the case, but even that has given the more opportunities and litigation in the form of litigation. We have seen witness the litigation where the CIT appeal have rejected the appeals mainly on the procedural issue that you have not filed the form online. Then a year before, 12th September 2019, the government notified the e-assessment scheme 2019, and which right now has been renamed on 30th August 2020 by notification dated notification number 61/2020 as a faceless assessment. This has been pursuant to the government Honorable Prime Minister announcement on 13th August honoring the honest taxpayer transparent taxation system. And with these announcement, government also said that we would come with the faceless appeal also, for which the target date has been given as 25th September 2020. So this is the journey of historical background to make you aware what this is not a one-day change or the 1 month change. Is the change that the government has been creating, has created over a period of time. This is not like a announcement of a demonetization of the currency. Now, coming to the legislative changes, as I had said, that the changes, faceless assessment, government first thought of in their finance while introducing Finance Act 2018. While introducing Finance Act 2018, they introduced that they inserted two sections, subsection 3A and subsection 3B, to section 143.3, which is basically governing the scrutiny assessment. In that subsection, the government was aiming that was given the power. The power was given to the central government that they would come with a scheme to bring transparency, accountability, and bring efficiency in the system.
And how they would achieve that efficiency, transparency, and accountability? First, they would eliminate the interface between the assessing officer and the assessee to the extent technologically feasible. So if somebody is wondering that faceless assessment have come and this, it would take away my work, so he would have been rather cautioned from Finance Act 2018 itself. With the passing of that act itself, it was to be done sooner or later, and government done that by giving a notification number 61/2019 and 62/2019 dated 12 September 2019 last year. It is just a 1 year before that the government came with the e-assessment scheme. After that, the government has also made the provisions for e-penalty, that is the newborn child by Finance Act 2020. Then e-appeals. First appeal would be through e-assessments or e-faceless assessment. They have introduced by Finance Act 2019. And second, the government, the long time awaited, they have made the enabling provisions for adoption of a tax charter by inserting section 119A. And after that, there has been an amendment to the scheme by notification that dated 61/2020 and 62/2020, which has drastically changed, I must say, which has not changed drastically, but they have enabled the complete faceless assessment in certain cases. I repeat, the faceless assessment in certain cases. Not all the cases have been given to the faceless scheme. I will explain that. But before that, after giving the power under section 3A to the government also said there would be a requirement to change or modify certain sections which enables the assessment proceedings. So that power was also given to the government, that they can bring the notification, and after bringing that notification, they can in that notification they can say how the certain sections of the Income Tax Act would apply with modification, or will apply with certain modification, or adaptability will be there to give effect to the faceless assessment. Now, this is the legislative background. If one has to refer faceless assessment, then one has to be very careful that this is the legislative background. 143(3)(a) notification number 61/2019 as amended from 61/2020, because one has to read this. It is not my humble views would help you in each and every case. It is I request all the members that at least go by these two notifications as amended to apply whether or not their case would be governed by the faceless assessment, and how it will go, and whether there are any jurisdictional issues or whether there are any apparent contradiction as compared to the other earlier regime. And these notifications have been given, further notification have been given, because to do an assessment is a work of an assessing officer. An assessing officer, we hitherto is a jurisdictional assessing officer and CPC, who are having a concurrent jurisdiction. But by the notification dated 64/2020, National E-Assessment Center has been given concurrent jurisdiction to do assessment under the Act. So always be careful that jurisdiction of the National E-Assessment Center is concurrent jurisdiction by virtue of notification dated 64/2020 dated 13th August 2020. Now coming to the paradigm shift, how department have changed themselves to cope up with this, changes. First, they have made themselves changes, and I explained in the coming slide how the department has changed themselves.
as a corporate organization, we used to have normally 3 offices. One, front office, second, middle office, and third is back office. The role of the front office is the interface between the customer, and the middle office is doing both the work. It is coordinating with the front office also, and it is coordinating with the back office. It is a interface between the two, maybe via front office or maybe directly to the back. And second, the back office. Now, this is the typical example of a corporate organization where normally the functions are given on the basis of their categorization as front office, middle office, or back office. Now, earlier department was also having this kind of the scenario in their departmental structure, and how I just explained. Their front office would require to be jurisdictional assessing officer, which is now called as a JAO. JAO doesn't mean कि jurisdictional assessing officer को अब जाना है. Even this is a departmental term. मैंने department की अभी 31 अगस्त को प्रिंसिपल CCIT और इनका डेलिब्रेशन हुआ था, उन्होंने ये टर्म वहां से उठाई है. मैंने डिपार्टमेंट अपने ही असेसिंग ऑफिसर को जाओ कहते हैं, और उसके दोनों ही मीनिंग है कि जाओ मीन्स वापस ना आओ, और जाओ मतलब आप बस आपका काम हो गया. बट दैट इज नॉट द केस. जाओ स्टिल हैव अ प्रेजेंस, एंड it has still have a value, or it has still the things to do. I will explain in my subsequent slides. And the middle office used to be JCIT, ACIT, and PCIT, additional commissioner, joint commissioner, from which certain directions, some clarifications, or some instructions were flowing to the JAO. And back office would have used to be JAO or CPC, because they were either the processing of the refunds or processing of returns, or maybe some back office preparation after post assessment or pre assessment. This could be any situation. And now I come to what is the scenario now. At the front, Delhi wale aa gaye hain. At the front, the NEAC, the setup unit setup by notification dated 64/2020, that will govern your assessment. That would be your front phase henceforth, and that National E-Assessment Center would be your assessing officer. And it is not an assessing officer that now jurisdictional assessing officer is not your assessing officer. It is your assessing officer with concurrent jurisdiction. I will explain what is the concurrent jurisdiction in subsequent when I come with the respective part. Now, middle office, these are the units under the REAC: AU, VU, TU, RU. Assessment unit, verification unit, technical unit, review unit. And REC would be the cadre controlling in charge of a regional E-assessment center, where there under would be the AU, VU, TU, and RU. The NEC would be REC would be reporting to I must say to NEC. And now the back office work, JO and CPC, remains with the same. JO for post assessment and CPC for processing of returns. So this is the organizational structure change, the paradigm shift that has happened in the organizational structure of the department. Now, how many of the units and how they have, I think this slide is failed. How many units have been set up at each level? I just give a brief of that. At NEAC, there is only one nodal agency, one NEAC, with having 34 officers and other secretarial or other ministerial staff. 13 regional E-assessment center has been set up for giving effect to the faceless assessment scheme. And under that 30 regional assessment center, there are 95 assessment units, 35 verification unit, 20 review units, 4 technical units. And under each assessment unit and verification unit, there is one PCIT, 4 additional or joint commissioner, 4 deputy commissioner or assistant commissioner, and 20 ITOs. And
under each review unit and 20 technical unit, there is 1 PCIT, 3 additional or joint commissioner, 6 DCs or ACs, and 9 ITOs. These is the structural changes. If I conclude in one word, it is almost 2/3 of the existing strength of the organization have been diverted to the to the National E-Assessment Center to give effective, have been diverted under the faceless assessment to give effect to the faceless assessment scheme. Now what the department says in their tax charter, what are their key expectations from the assessee, and just hold on. So, as I said, the department has changed. So first change is that they have bring the tax charter, and in the tax charter they say that we are committed to certain things, and at the same time we expect you to be committed to certain things. I request all the members at least circulate to their all clients this tax charter, so that they at least know not for what the department is, the department commitments are there, but for what are the expectations of the department from their taxpayer. I would request कि उनको केवल एक्सपेक्टेशन पार्टी भेजें क्लाइंट्स को, अदरवाइज क्या होता है, डिपार्टमेंट का कमिटमेंट भेज देते ना तो क्लाइंट उसका अलग ही मतलब निकाल लेता है. वो ये सोचता है कि ये तो मेरा राइट है कि डिपार्टमेंट मेरे साथ ये ऐसे ऐसे करे और मुझे कुछ नहीं करना. सो आई वुड रिक्वेस्ट every member should circulate tax charter to their clients, and if required they should explain what is the tax charter, because आपके क्लाइंट के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या उसने नहीं किया है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास तो है, पर यू बीइंग अ सीए जो उनको मल्टीपल सर्विसेज देते हैं, हो सकता है आपके पास उतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं हो. क्लाइंट कई चीजें फॉर वन और अनदर रीजन सीएस के साथ शेयर नहीं करता. सो कमिंग टू द डिपार्टमेंट कमिटमेंट्स, अगर डिपार्टमेंट कमिटमेंट्स की बात करें तो दीज आर द कमिटमेंट्स व्हिच हैज बीन जुडिशियली इंटरप्रेटेड. जो कोर्ट ने भी कभी ना किसी केस लॉज में डिपार्टमेंट को एक डायरेक्शंस दिए हुए हैं. पहले एक सर्कुलर नंबर 35 हुआ करता है और आज भी है, जो डिपार्टमेंट को ये बोलता है कि असेसिंग ऑफिसर हैज टू बी द गाइड टू द असेसी. वो सर्कुलर आज भी हम रिलाय करते हैं कई केसेस में. सिमिलरली डिपार्टमेंट कमिटमेंट में फर्स्ट कमिटमेंट इज डिपार्टमेंट would give fair, courteous and reasonable treatment to each assessee. Second thing, they will treat the taxpayer as honest. 50 साल लगे डिपार्टमेंट को ये कहने में, लेकिन मोदी जी ने आखिरकार 13 अगस्त को बोल ही दिया कि टैक्स पेयर ऑनेस्ट है. अदरवाइज टैक्स पेयर के बारे में छवि ये होती थी कि टैक्स पेयर इज अ इवेडर, और डिपार्टमेंट के बारे में एक छवि होती थी, जिसको छवि होती थी, मुझे अभी कहना नहीं चाहिए, वो टैक्स पेयर के एंगल से होती थी, जिसको ही चेंज करने के लिए फेसलेस असेसमेंट लाए हैं कि ह्यूमन कॉन्टैक्ट खत्म ही कर दो. सेकेंडली, they will provide the fair and impartial appeal and review mechanism. This is already in the law, because right of appeal is a statutory right. It has to be provided in the law. And complete and accurate information for compliance under any law. Timely decision. They would pass the orders timely. They will not drag the assessment. Tax collection, they would do as per the law. Article 265 of the Constitution says that no authority can levy the tax except as authorized by the law, and they will respect the privacy of the taxpayer. Right now, the department has a 360-degree profile of every taxpayer, and that they have, but they are not. They are respecting the privacy of the taxpayer. They are using for their purposes only, and they are not breaching the confidentiality. Secondly, they say that we will hold our officers accountable. एक काफी टाइम से ये चलता आ रहा है कि हाई पिच असेसमेंट्स, मल्टीपल एडिशंस, एक ही इशू पे 4 बार में एडिशंस, तो उस केस में एडिशंस तो बाद में आके चल के अपीलों में या कैसे भी छूट जाते थे बिकॉज ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मेरिट्स ऑन द लीगल इशू. पर
अथॉरिटीज का भी अकाउंटेबल नहीं होती थी। तो डिपार्टमेंट का कमिटमेंट कि हम हमारी अथॉरिटीज को भी अकाउंटेबल बनाएंगे। नाउ डिपार्टमेंट आपका भी एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि एसएससी चाहे जिस पर्सन को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है, दे हैव देयर ओन चॉइस, एंड दे आल्सो से we will implement a fair and impartial system of justice, and lastly they are saying that with all their commitments and with all their efforts they are likely to reduce the cost of compliance. How it is going to be, that only the time will tell. Now coming to the expectation from the taxpayers. They say that we have to be honest and compliant. They say we treat you as an honest, but at the same time you has to be honest, remain honest and be compliant. You file your return on time, you make your disclosure on time, you give us complete particulars, you pay taxes on time, you respond on time. These are the expectations from the department. And they also say that be informed. There is a saying that excuse of ignorance of law is not an excuse under the law. So taxpayer का कई बार अपील्स लड़ते हैं या कुछ करते हैं, तो taxpayer का ये normally clients we must have faced that कि सर इसके बारे में मुझको पता नहीं था और मुझे नहीं पता था कि ये चीजें ऐसे होती हैं, otherwise I would have give you that information. मुझे इसके बारे में पता नहीं था, या फिर सीए को ही बोलते हैं कि सर आपने मेरे को इसके बारे में पूछा नहीं तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो डिपार्टमेंट सेज दैट टैक्सपेयर हैज टू बी इन्फॉर्म्ड, उनको सब पता होना चाहिए। टैक्सपेयर को इन्फॉर्म करने के लिए ही मोदी साहब 13 अगस्त को अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सर आप इन्फॉर्म रहो, टैक्स चार्टर ये कह रहा है, आप कल को ये ना कहें कि हमें पता नहीं था। सो नाउ there would be a rare case that the person would be taking a plea that I was not having the I was not having the knowledge of this aspect of the law, or this is the procedure of the law, कि मुझे नहीं पता था कि ये चीज भी रिपोर्ट करनी होती है, मुझे नहीं पता था कि ये चीज रिपोर्ट तो करनी होती है लेकिन इसकी इनकम भी रिपोर्ट करनी होती है। And these all things would go. Now they also say the keep accurate records. इसमें एक हिंट है, जो नई पेनल्टी है ये 271AA की, कि आपको फॉल्स एंट्री और बोगस एंट्री से काम नहीं चलेगा, तो आपको रिकॉर्ड्स प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने रहेंगे। एंड रिप्रेजेंटेटिव को भी आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट ही इज सबमिटिंग बिफोर द अथॉरिटीज, व्हाट factual representation he is giving about yourself. This is all the expectation from the taxpayer. एसएससी को ये पता होना चाहिए कि उसका रिप्रेजेंटेटिव भी क्या कर रहा है। नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट लाइन आइटम, ये डेडलाइंस हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे डिपार्टमेंट के कमिटमेंट में और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द टैक्स पेयर इन द टैक्स चार्टर इटसेल्फ, डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को तो डेडलाइन दी हुई है कि आप टाइम पे रिस्पॉन्ड करो, टाइम पे करो, लेकिन अपने लिए कहीं भी टाइम की बाउंडेशन नहीं डाली है। इट मीन्स दैट दे आर स्टिल टू अडॉप्ट देयर सिटीजन चार्टर, जो पहले भी आया हुआ था कि हम ऐसे आपकी रेक्टिफिकेशन का टाइम 4 महीने में देंगे, आपका रिफंड 30 दिन में इशू कर देंगे, तो वो उसी से गवर्न होगा। या फिर जहां पे ये जो ये वर्ड है फेयर, कर्टियस एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट देंगे, ये इन्हीं से ही गवर्न होंगे। बट हियर इज द पॉइंट कि आपको टैक्स टाइम पे भरना है, रिटर्न टाइम पे भरनी है, और इवन आपको लॉ की कंप्लायंस भी टाइम पे करनी है। फेसलेस असेसमेंट में भी अगर स्कीम के जब इंटीग्रिटीज पे अपन जाएंगे तब देखेंगे तो डिपार्टमेंट टाइम नोटिस का भी इशू करेगा, उसका टाइम जो देगा उसी के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना है, या ज्यादा से ज्यादा आपको एक एक्सटेंडेड टाइम दे दिया जाएगा। तो दिस इज इन लाइन विद देयर टैक्स चार्टर। नाउ कमिंग टू द मूड क्वेश्चन दैट व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स ऑफ द फेसलेस असेसमेंट। डिपार्टमेंट प्रोपेगेट कर रहा है, ट्विटर पे ये फोटो काफी घूमी, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी है कि डिपार्टमेंट कहता है कि फेसलेस असेसमेंट से सबसे पहले तो ये फायदा होगा कि देयर वुड बी अ न्यू ह्यूमन इंटरफेस, एलिमिनेटिंग द बायस, एप्रीहेंशन ऑफ बायस वुड नॉट बी देयर। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एओ मेरे अगेंस्ट है या फेवर में है।
तो ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो गया, तो ये एक तरह से चैलेंज भी है, एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है, दोनों चीजें ही हैं फॉर द एसएससी। चैलेंज इसलिए है कि मेरे को पता ही नहीं है कि एसएससी का एओ का व्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि कई प्रोफेशनल्स को या कई एसएससी को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि असेसिंग ऑफिसर कौन है, उनको ये फर्क पड़ता है कि मेरा केस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हु विल गिव मी द वैल्यू, they approach that chartered accountant or that professional only. So this is the inbuilt threat or opportunity inbuilt in this benefit. Secondly, compliances would be reduced, transparency and efficiency would be met, and functional specialization के लिए डिपार्टमेंट ने ये 4 यूनिट्स बनाई हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगी। एंड क्वालिटी असेसमेंट, अब हाई पिच असेसमेंट का जमाना गया और स्पेसिफिक क्वेरीज पे असेसमेंट का जमाना आएगा। स्पेसिफिक पॉइंट पे इशू, स्पेसिफिक पॉइंट पे नोटिस, स्पेसिफिक पॉइंट पे शो कॉज नोटिस, स्पेसिफिक पॉइंट पे शो कॉज का जवाब। ना डिटेल्ड सबमिशन चलेंगे, ना दुनिया भर के जजमेंट चलेंगे। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी हम्बल, यू हैव टू शो योर ड्राफ्टिंग स्किल, ओरेटरी स्किल अब बहुत मुश्किल से ही काम आने वाली है। तो इसका फायदा ये हुआ कि फेस वैल्यू तो गई, केस वैल्यू आई। फेस वैल्यू कैसे गई कि जरूरी नहीं है कि वो पर्सन डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट करे जिसकी फेस वैल्यू डिपार्टमेंट में है या जिसका इन्फ्लुएंस डिपार्टमेंट में है। मे बी फॉर हिज टेक्निकल कॉम्पिटेंस और मे बी फॉर हिज नॉलेज ऑफ द लॉ या फिर मे बी फॉर अदर रीजंस, बट क्वालिटी ऑफ असेसमेंट वुड इम्प्रूव। आपको जब प्रोसेस देखेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी ऑफ असेसमेंट कैसे इंप्रूव होगी। आई एक्सपेक्ट कि राइट नाउ हाई पिच असेसमेंट तो अब नहीं होंगे। एग्जिस्टिंग जो हाई पिच केसेस हैं उनका क्या होगा, वो ई अपील्स जब आएंगी उससे पता चलेगा उसको कैसे डील करते हैं। अकॉर्डिंगली देयर वुड बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट द एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केस। आपका असेसमेंट टाइम से होगा, आपकी अपील टाइम से डिस्पोज ऑफ होगी, यू विल गेट द रिलीफ टाइमली। ऐसा नहीं कि लिंगर ऑन हुआ चाह रहा है, आपका असेसमेंट तो टाइम पे हो गया क्योंकि 153A में टाइम फाउंडेशन है प्लीज। लेकिन अपील के लिए क्योंकि डायरेक्टरी टाइमलाइन है 1 ईयर की, तो वो कभी फॉलो ही नहीं होती। सो दिस वुड बी द बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटी आल्सो लाइज बिकॉज पहले तो एक केस में आपका बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लग जाता था। आपको केस प्रिपरेशन में टाइम देना होता था, उसके बाद आपको केस की हियरिंग पे जाना होता था। हियरिंग में आप गए, उस दिन असेसिंग ऑफिसर नहीं है या दूसरे के किसी केस का हियरिंग चल रही है, आप वेटिंग टाइम में चल रहे हैं, या फिर जब आपका नंबर आया तो आपको बोला कि कल आ जाना। तो दिस वुड एलिमिनेट, आपके पास काफी टाइम बचेगा। तो ऑन अकाउंट ऑफ दिस देयर वुड बी ए saving in the time, saving in the energy, and accordingly more time for professional development. Earlier the case used to be कि आपको अगर कोई पूछे कि आपको इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना चाहिए, तो किसी का एक जोकिंगली आंसर है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर क्या है उसको वो पता होना चाहिए। नाउ बिकॉज वी आर प्रोफेशनल वी कैन नॉट से आपको इनकम टैक्स लॉ क्या है वो पता होना चाहिए। तो फेसलेस असेसमेंट, जिनको इनकम टैक्स लॉ पता है, इनकम टैक्स की इन डेप्थ नॉलेज है, अपना केस रिप्रेजेंट करना जानते हैं, उनके लिए एक बून रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। इनिशियल हिकअप्स जरूर रहेंगे लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द मेन फोकस एरिया कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये अचीव करना चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, ये किस तरह से अचीव करेंगे। ये एक ब्रॉड स्कीमा है इस स्कीम का, फेसलेस असेसमेंट स्कीम का। इसमें आप देखेंगे कि टैक्स पेयर एक एज पे है और बाकी जो यूनिट्स हैं वो दूसरे एज पे है, और बीच में जो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग पर्सन है वो है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। और टैक्स पेयर से कम्युनिकेशंस भी जो हो रहे हैं वो पोस्ट के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं हो रहे हैं, दैट वुड बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ईमेल, एसएमएस या फिर आपका रजिस्टर्ड अकाउंट। एंड जो काम करेंगे टीम बेस्ड असेसमेंट, वो काम करने की यूनिट्स जो है वो 4 हैं, असेसमेंट यूनिट्स, वेरिफिकेशन यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट्स, रिव्यू यूनिट्स। और इन सबका हेड, इन 4 यूनिट्स का हेड रीजनल ई असेसमेंट सेंटर, हु वुड बी रिपोर्टिंग टू द
who would be for administrative purpose, he would be under the National E-Assessment Center Principal Chief Commissioner of Income Tax. उनके जो इंचार्ज होंगे NEC के जो प्रिंसिपल PCIT इंचार्ज हैं अभी जो हैं वो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज होंगे, कंट्रोलर होंगे, कैडर कंट्रोलिंग पर्सन होंगे. सो अब इसमें क्वेश्चन उठता है विच आई विल एड्रेस. अभी मैं उसको पार्क कर रहा हूं. जब NEC असेसमेंट करेगी और NEC असेसमेंट ऑर्डर पास करेगी तो क्या सारे के सारे असेसमेंट ऑर्डर NEC पास करेगी तो क्या एक पर्सन के लिए ये वायबल है या प्रैक्टिकली पॉसिबल है या लॉ के हिसाब से करेक्ट है क्या कि लाख असेसमेंट ऑर्डर एक NEC नहीं पास कर दिए. अभी फॉर अ मोमेंट इस क्वेश्चन को पार्क कर रहा हूं, आप इस पे चिंतन कीजिए. यू विल फाइंड द आंसर when I will be dealing with my further deliberations, or meanwhile I will ask you what is your view on that part. That is question put on by me before you give any questions to me. Whether NEC, a single person, जहाँ पे केवल 34 ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, एक AO ने लाख असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिए, मतलब पास मीन उसका डिजिटल सिग्नेचर है, साइन किए, उसने पास किए हैं, फाइनलाइज वही कर रहे हैं, तो क्या उसका असेसमेंट ऑर्डर वैलिड रहेगा या वो क्या एक करेक्ट व्यू है कि नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूं. नाउ कमिंग टू द स्कोप ऑफ फेसलेस असेसमेंट. सबसे पहले तो जान लेते हैं कि क्या इसके अंदर इंक्लूड नहीं है. वो है केसेस ऑफ सेंट्रल चार्ज और सर्किल. सेंट्रल सर्किल के केसेस होते हैं नॉर्मली सर्च के असेसमेंट 153A, 153B, 153C से जो कवर होते हैं स्पेशल चैप्टर से. तो सर्च और सर्वे के जो केसेस होते हैं जो सेंट्रल चार्ज में फॉल करेंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं है. उनको अभी भी जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के साथ में ही अपना रेकॉर्ड बना के रखना है, उनके साथ में उनका व्यू समझना है, उनके साथ में अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं. सेकेंडली, जो केसेस ऑफ इंटरनेशनल चार्ज, NRIs हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, नॉर्मली इंटरनेशनल केस के केसेस जो होते हैं वो उसका जो हेड है या हब है वो दिल्ली है, बट बिकॉज द NRIs आर स्प्रेड और इंटरनेशनल कंपनीज आर स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया, तो वो जुरिडिक्शनल वो असेसमेंट भी फेसलेस असेसमेंट से एक्सक्लूडेड है. तो दीज आर द एरियाज जहां जो अनअफेक्टेड रहेंगे. सूनर और लेटर ये भी आ जाएंगे, आई कैन नॉट अश्योर, बट अभी के लिए तो ये नहीं है. सो आपकी एरिया ऑफ प्रैक्टिस में से सारा पाई ऑफ ब्रेड, आपकी ब्रेड में से इतना पाई आप ही के पास ही है, ये कहीं नहीं गया है. सेकेंडली, जो गए हैं वो हैं जहां जो 143(2) के नोटिस जहां इशू हुए हैं, तो इनमें ये बताया है. एक तो वो केसेस जहां पे रिटर्न फाइलिंग के केसेस हैं. रिटर्न फाइलिंग के केसेस जहां आपने रिटर्न भरी है, मे बी अंडर सेक्शन 139, 142, 142(1) या जहां भी आपने रिटर्न भरी है और आपको 143(2) का नोटिस इशू हो चुका है असेसिंग ऑफिसर से. तो दिस इज अ ट्रांजिशनरी फेज कि 13 अगस्त से सारे फेसलेस असेसमेंट में करने हैं. तो उन्होंने स्कोप में डाल दिया कि जहां पे रिटर्न भरी हुई है 143(2) का नोटिस ऑलरेडी इशू करना है, किया हुआ है, वो केसेस में NEC will intimate कि your cases would be covered under the faceless assessment. And please mind, as per the scheme, there is no requirement of issuance of further notice under section 143(2) in such cases. Second, जहां पे आपने रिटर्न नहीं भरी, तो रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपके केस में 142 का नोटिस आता है. 142 के नोटिस के भी रिप्लाई में रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपका केस शॉर्ट है कि आपका केस में 148(1) का नोटिस इशू हो. थर्ड, जहां आपने रिटर्न 141 के 8 के रिस्पॉन्स पे भरी है और नोटिस अंडर सेक्शन 142 इशू हुआ है, वो केसेस जो पेंडिंग केसेस है वो भी अब फेसलेस असेसमेंट में ट्रांसफर होंगे. मीनिंग देयर बाय कि जो पेंडेंसी है वो 13 अगस्त के बाद से अब फेसलेस असेसमेंट में जाएगी. और वैसे भी अब तो वैसे टाइम लिमिट 30 सितंबर 2020 थी, उनको इन्होंने 31 मार्च 2021 कर दिया. तो दे हैव एम्पल टाइम टू गिव इफेक्ट टू द ऑल स्कीम. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि 148(1) के जो केसेस हैं जिनमें ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है और वो तो चलो यहाँ ट्रांसफर हो गए, लेकिन क्वेश्चन कम्स कि जो केसेस अभी 148 में खुलेंगे जिनकी टाइम लिमिट 31 मार्च 2021 है फॉर असेसमेंट ईयर 14-15, क्या वो भी फेसलेस में आएंगे क्या? सूनर और लेटर आई शुड से आएंगे. बट इस पे एक ट्रिकी क्वेश्चन ये है जो पॉइंट करने का है
वो ये है कि NEAC जो है वो रीजन रिकॉर्ड कर सकती है क्या, या वो नोटिस दे सकती है क्या 148(1) का? आपके पास चैट, आई थिंक चैट का ऑप्शन होगा, इफ यू विश टू आंसर। राजकुमार जी, चैट का ऑप्शन है इसमें? हाँ जी, चैट का ऑप्शन है। I would seek your responses on chat. NEC जिसको कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन दे दिया, क्या वो 147 का नोटिस इशू कर सकती है, या नोटिस अंडर सेक्शन 148 रीजन रिकॉर्ड कर सकती है? या फिर मैं ये कहूं कि जो 4 यूनिट है, जो AU यूनिट है, कहीं की भी असेसमेंट यूनिट है, वो कहीं का भी असेसमेंट कर सकती है एज पर द स्कीम, क्या वो नोटिस इशू कर सकती है 148(1) का? I think answers are not coming, or it has come. अनुराग जी, राजकुमार जी बताएं, कुछ आंसर्स आए हैं क्या? अभी नहीं है। Okay, I would not waste much time. The answer is no. Reasons recorded या 148(1) का जो नोटिस है आपको आगे चल के जो आएगा, सब्जेक्ट टू डिपार्टमेंट अगर स्कीम में कोई चेंज करता है या अपने नए SOPs बनाता है, एट प्रेजेंट जो स्कीम आई है, जो नोटिफाई हुआ है, उसके हिसाब से आपका केवल जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ही है जो आपको 148(1) का नोटिस दे सकता है, और वो 147 के रीजंस भी रिकॉर्ड वो ही करेगा। सो प्लीज नोट, जो ये प्रीवियस स्लाइड में जो 148 के केसेस थे ना, वो केसेस थे जहां पे ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुका है, और जहां पे अभी नोटिस इशू नहीं हुए हैं वो तो एक बार आपके जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ही इशू करेंगे। एट प्रेजेंट ये लॉ की सिचुएशन है, इट में वेरी, क्योंकि ये पॉइंट डिपार्टमेंट को भी हाईलाइट हो चुका है, डिपार्टमेंट को भी बताया जा चुका है कि ये एक लैकुना तो क्या कहें, ये एक पॉइंट है जो अभी गवर्निंग डिपार्टमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ अभी तो जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ही करेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही उसी के पास होती है, और भी ये सिस्टम इतना डेवलप हुआ ही नहीं है कि हर असेसमेंट यूनिट के पास किसी ना किसी चीज की इंफॉर्मेशन हो। नाउ कमिंग टू द कॉन्करेंट जुरिडिक्शन, there are hello, my voice is clear? Yes. Concurrent jurisdiction, असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स लॉ में एक ऐसा ऑफिसर है जो अथॉरिटी है जिसको इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अथॉरिटी जो अल्टीमेटली इनकम टैक्स के असेसमेंट करती है, और उसी को ही पावर दी हुई है नोटिस इशू करने के लिए, सम्मन इशू करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, एनीथिंग विच वुड डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी। असेसिंग ऑफिसर को ये पावर दी हुई है। अब ये असेसिंग ऑफिसर को पावर जो दी हुई है, नॉर्मली जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को दी हुई है कि जो एरिया बेस्ड या आप कहाँ रहते हैं उसके हिसाब से जुरिडिक्शनल बोर्ड के द्वारा सेक्शन 120 124 में असाइन होता है। नाउ आई हैव मेंशन्ड दैट नाउ देयर वुड बी 3 assessing officer, 3 concurrent assessing officer having the concurrent jurisdiction. One is the central processing unit, वो आज भी है, आगे भी रहेगी। उसका रोल क्या रहेगा कि आपने रिटर्न भरी और 143(1) का इंटीमेशन आया, तब तक आपकी रिटर्न की प्रोसेसिंग तक का उसका कॉन्करेंट जुरिडिक्शन रहेगा। उसके बाद भी टू री इशू द रिफंड, टू मेक सर्टेन रेक्टिफिकेशन। देन जुरिडिक्शनल NEAC आपको 143(2) का नोटिस देगी। आपका असेसमेंट जब तक होगा, टीम बेस्ड असेसमेंट विद द यूज ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, और टीम बेस्ड असेसमेंट जब होगा उसके बाद तक NEAC क्या आपके ऊपर कॉन्करेंट जुरिडिक्शन रहेगा। और कॉन्करेंट इसलिए क्योंकि एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं है, इट इज कॉन्करेंट मींस साइमल्टेनियसली जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर भी आपके ऊपर जुरिडिक्शन रख के बैठा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आपके ऊपर जुरिडिक्शन रख के बैठी है, और NEAC एट अ टाइम एक ही जना अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि तीनों जने एक साथ करेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं है, इट इज अ कॉन्करेंट जुरिडिक्शन। मतलब एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन का मीनिंग यह है कि एक का जुरिडिक्शन दूसरे के जुरिडिक्शन को आउट नहीं करता। एक को जुरिडिक्शन किसी लिमिटेड पर्पस के लिए दिया गया है, वो उसी पर्पस के लिए उसका जुरिडिक्शन है। नाउ जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर,
असेसमेंट तो चाहे फेसलेस हो या ई असेसमेंट में हो या कैसे भी हो, या फेसलेस हो या वॉइसलेस हो, कैसे भी हो, जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर का रोल खत्म नहीं होता। डिमांड, रिफंड्स, रिकवरी, अपील इफेक्ट, स्टे ऑफ डिमांड, रेट, फर्दर अपील्स, रेक्टिफिकेशन, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, इन सब के लिए आपका जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ही ऑथराइज्ड पर्सन है। सो आपके जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर का रोल खत्म नहीं हुआ, उसकी फेस वैल्यू भी खत्म नहीं हुई, और आपके रिलेशनशिप भी खत्म नहीं होने चाहिए। सो दैट्स द पॉइंट ओनली। एंड नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यहाँ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो होती थी आज तक, वो ये होती थी कि साहब असेसमेंट इसी इशू पे क्वैश हो जाते थे कि 143(2) का जो जुरिडिक्शनल नोटिस है वो सर्व ही नहीं हुआ टाइम पे, या वो सर्व कैसे नहीं हुआ, उसके लिए काफी रीजंस होते थे कि किसी दूसरे के इम्प्रॉपर सर्विस है, डेड पर्सन पे इम्प्रॉपर सर्विस है, पोस्टल एड्रेस गलत है, जुरिडिक्शनल एओ जो है वो सही नहीं है, तो ये इस चीज पे खत्म हो जाते थे। नाउ दीज आर द पासिंग अफेयर्स। नाउ योर नोटिस, ऑर्डर्स और जितने भी कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही होंगे, और इलेक्ट्रॉनिकली कैसे होंगे, लेट्स सी। उस नोटिस की कॉपी आपके रजिस्टर्ड अकाउंट पे रख दी जाएगी। इट विल बी प्लेस्ड इन द असेसीज रजिस्टर्ड अकाउंट, एंड असेसीज रजिस्टर्ड अकाउंट इज हर किसी का इनकम टैक्स के पोर्टल पे एक रजिस्टर्ड अकाउंट है। देयर इज अ ई प्रोसीडिंग टैब, देयर दे विल पुट देयर नोटिसेस। However, they are under discussion that designated portal would be created for e-assessment only, not the existing portal. However, meanwhile, that is only the designated portal, although that has to be notified by that has to be designated by the principal commissioner, and sooner or later that and it has been done. Or either it will be set to your registered email address of the assessee or his authorized representative assessee. The meaning of registered email address of the assessee has a meaning. It is a very much, I must say, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने का है, क्योंकि ईमेल एड्रेस हम आज कुछ भी कोड कर देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। हमारे पर्सनल ईमेल आईडीज अलग हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडीज अलग हैं, एमसीए पे जो ईमेल आईडी दिए हैं वो अलग हैं, और जो आधार में दिए हुए हैं वो ईमेल आईडी अलग हैं। प्लीज माइंड, अब ईमेल आईडी आपका चाहे कहीं भी दिया हुआ हो, डिपार्टमेंट कैन यूज दैट ईमेल आईडी एंड सर्व यू द नोटिस, और उस ईमेल आईडी पे अगर नोटिस आया है, दैट वुड बी अ वैलिड सर्विस, दैट वुड बी अ वैलिड कम्युनिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। और ये कैसे हुआ है? ये हुआ है इनकम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। देयर इज अ सेपरेट सेक्शन अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 13 which provides for the service of the electronic records, कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का सर्विस कब मानेंगे और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की रिसिप्ट कब मानेंगे। आई विल एक्सप्लेन दैट इज कमिंग इन माय स्लाइड। एंड इट वुड बी ऑथेंटिकेट, डिपार्टमेंट मोबाइल ऐप भी बनाने वाला है, आपकी मोबाइल ऐप पे भी डाल देंगे। सो द कम्युनिकेशन के चैनल इतने सारे हो चुके हैं, देयर इज लेस चांस कि देयर इज अ इम्प्रॉपर सर्विस। अब वो सारे जो जजमेंट्स पहले जो कोट करते थे कि सर्विस नोटिस सही से नहीं हुआ प्रॉपर पर्सन को, ही वाज नॉट ऑथराइज्ड बाय फैक्ट्री में दे दिया, फैक्ट्री में जो बंदा था उसको दिया, वो ही वाज नॉट ऑथराइज्ड बाय, वो सब गए। वो जितने भी असेसमेंट ऑर्डर क्वैश होते थे, अब वो सारी प्रैक्टिस खत्म। और इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट ने इतना भी इंश्योर किया है कि आपको रियल टाइम अलर्ट भी देंगे। आपके पास एसएमएस आ जाएगा, आपकी ईमेल पे अलर्ट आएगा कि दिस नोटिस हैज बीन अपलोडेड ऑन योर पोर्टल। ये अभी भी होता है, जो असेसमेंट्स अभी करवा रहे हैं करते हैं उनको पता होगा कि ये अभी आपके पास बाकायदा अलर्ट्स आते हैं और ईमेल भी आती है कि आपका करता है। नाउ हमने जीएसटी में बार बार ये पढ़ा है, इंपॉर्टेंस भी है जीएसटी लॉ की, टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इनकम टैक्स की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको, और जीएसटी भी करना पड़ता है, करते ही हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के अलावा उनको ये भी समझना पड़ेगा कि देयर इज अ सेक्शन 13 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 व्हिच स्पीक्स अबाउट टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब
ईमेल जब NESE ने भेजी या नोटिस NESE ने भेजा तो उसकी डिस्पैच का टाइम क्या है और उसके डिस्पैच का प्लेस क्या है। और NESE ने आपको भेजा और आपके पास आया तो व्हाट इज द रिसीव टाइम, आपने जब उसको देखा तब या तब कि जब वो आपकी इनबॉक्स में आ गया। प्लीज माइंड द प्रोविजन ऑफ द लॉ सेज सेक्शन 13 इफ आई हैव एग्रीड अदरवाइज, आप डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लो कि साहब आप जब मेरे को भेजोगे और इस ईमेल आईडी पे भेजोगे और मैं जब देखूंगा तभी मैं मानूंगा कि ये मेरे पास आया, और आप जब मेरे को भेजोगे और आपके यहाँ से आपके आउटबॉक्स में पड़ा है तो मैं नहीं मानूंगा, तो वो एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा। अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट प्रेजम्पशन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो तभी डिस्पैच हो गया जब वो NEC के कंप्यूटर सोर्स से कंट्रोल से बाहर हो गया। जैसे उसने NEC कंप्यूटर सोर्स में एंटर किया बाहर, मतलब अगर इसको सिंपली भाषा में समझे, आपने जैसे ईमेल सेंड की, आपके सेंट बॉक्स में दिख गया, इसका मतलब ईमेल गॉन, डिस्पैच हो गया। और अगर के डिस्पैच हो गया, आप रिसीट कैसे माने कि मिला कब, तो रिसीट के भी मायने हैं कि मैंने बता रखा है कि आई एम नॉट रीडिंग द रियल लैंग्वेज, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। मैंने बता रखा है कि मुझे फलाना ईमेल आईडी पे मेरे को आपका कम्युनिकेशन आना चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ डिपार्टमेंट को। मेरे रिटर्न में बताया हुआ है, मेरे आधार में बताया हुआ है, मेरे पैन में बताया हुआ है, मेरे MCA के डेटाबेस में बताया हुआ है, और अदर इन्फॉर्मेशन भी कभी डिपार्टमेंट के पास कभी कोई कम्युनिकेशन पिछले कभी किया हो उसमें दिया हुआ है। अगर मैंने आपको बता रखा है कि ये मेरा ईमेल आईडी है, तो उस ईमेल आईडी पे जब भी वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिसीव होता है, एंटर करता है, मतलब मेरे इनबॉक्स, यहाँ रूल चलता है इनबॉक्स रूल कि इनबॉक्स में कब आया। इनबॉक्स मतलब ये नहीं कि आपने कहा कि स्पैम में आया, वो सब बातें नहीं चलेंगी। इनबॉक्स मीन आपके स्पैम बॉक्स इज अ पार्ट ऑफ इनबॉक्स ओनली। इनबॉक्स में आया तो इट इज अ पार्ट ऑफ योर रिसीट, आपने रिसीव कर दिया, तो उसी रिसीट की डेट के हिसाब से ही आपको 15 दिन 30 दिन जितना भी टाइम दिया उसके अंदर रिस्पॉन्ड करना है। और अगर कि आपने कहा कि नहीं मेरा डेजिग्नेटेड रिस्पॉन्स बताया हुआ है लेकिन डिपार्टमेंट ने आपके अदर देन डेजिग्नेटेड कंप्यूटर ईमेल आईडी पे नोटिस भेज दिया, आपने तो बता रखा है कि मेरा ईमेल आईडी mks@gmail.com पे आप भेजना, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या किया, वो आपकी गलत ईमेल आईडी पे भेज दिया, आपकी दूसरी ईमेल आईडी पे भेज दिया जो आपने बताई हुई नहीं थी। तो उस केस में जब मैं उस ईमेल को पढ़ूंगा तब इट वुड बी कंसिडर्ड कि इट हैज बीन रिसीव्ड बाय मी। सो वेरी थिन लाइन ऑफ डिफेंस इज अवेलेबल टू असेसी कि मेरे को कब रिसीव हुआ, बट दैट डजंट स्टॉप द सर्विस ऑफ द नोटिस, क्योंकि सर्विस तो आपके जब सेंड हुआ वहां से डिपार्टमेंट की तरफ से तभी हो गया। अब नाउ कमिंग टू द प्लेस ऑफ डिस्पैच, तो ये रहता है कि जहां से प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ असेस NESE ओरिजिनेटर का है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ डिस्पैच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एंड अगर के जिस असेसी के पास आ जाए तो असेसी का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसमें बना जाता है कि वहां उसको रिसीव हुआ है। अगर के असेसी AU NESE दिल्ली ने भेजा है तो दिल्ली का क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली है तो दिल्ली से डिस्पैच माना जाएगा, और रिसीव क्योंकि मैं चेन्नई में कर रहा हूँ, मैं चेन्नई में रहता हूं तो ये माना जाएगा कि चेन्नई में हुआ। ये जरूर हो सकता है कि मैं चेन्नई में रहता हूं लेकिन मैंने ईमेल एक्सेस की है जयपुर में, बट सर्विस रिसीट वुड बी कंसिडर्ड टू बी चेन्नई ओनली। So this is all about the time and place of dispatch of the notices and time receipt of the notices, which one professional should note, because this is going to help you. I should know in rarest of the rare cases, this would be helping you in your phases assessment. Now coming to the main point, what are the role and functions of the various units? I will explain the scheme and then also where the opportunities and threats are there so far as this various functions and roles are concerned. First, the assessment unit. These units are to make the assessment. These are the main function. ये आपके तरह जैसे jurisdictional assessing officer है वो ही आपका तो नहीं किसी और person का assessment unit हो सकता है, वो assessment करेगा। और ये assessment करने के लिए सबसे पहले it has to identify the points or issue. Second,
they have to determine any liability or any refund. They have to make draft assessment order. For that purpose, they have to seek inquiry. For the purpose of they would seek information. They would get the verification done from the verification unit through NEAC. They will analyze the material. These are the functions of the AU. अब AU के 2 रोल हैं after this scheme. AU आपका jurisdictional assessing officer, AU का jurisdictional assessing officer वाला रोल भी है, और being a dynamic jurisdiction के assessing authority होने के बाद भी उसका dynamic jurisdiction भी है. तो इसके दो रोल हो गए faceless assessment regime में. Verification unit का main function है verification. AU यूनिट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उसने मंगवाए, उसका वेरिफिकेशन करवाना है, तो वेरिफिकेशन AU यूनिट नहीं करेगी, वो कोई वेरिफिकेशन यूनिट करेगी जिसको रैंडमली अलोकेटेड बेसिस पे वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा. सो दिस इज द यूटिलिटी और दिस इज द बेनिफिट ऑफ, आई मस्ट से, टीम बेस्ड असेसमेंट. कि मेकर कोई है, चेकर कोई है, मतलब सुपरवाइजर कोई और ही है, मैंने पॉइंट आइडेंटिफाई किए, तो मैंने पॉइंट आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर चेक कर रहा हूँ, वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, तो दैट इज टू बी डन थ्रू वेरिफिकेशन यूनिट. तो ये सब हेल्प करेंगी NEAC को, ये सारी यूनिट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, मटेरियल का एनालिसिस करना, ये सब NEAC वेरिफिकेशन यूनिट के काम है. अगर के कोई केस सेटिस्फाइड हो जाता है और लिमिटेड पॉइंट के वेरिफिकेशन के लिए जाता है, सेटिस्फाइड हुआ है, तो वो वेरिफिकेशन यूनिट का काम होगा उसको एग्जामिन करना. टेक्निकल यूनिट टेक्निकल असिस्टेंस देगी, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, अकाउंटिंग, फॉरेंसिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैल्यूएशन, ट्रांसफर पैचिंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे इश्यूज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, फॉरेंसिक के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट, वैल्यूएशन सही से हुआ या नहीं हुआ, ये टेक्निकल असिस्टेंस यूनिट का काम होगा. एंड RU जो रिव्यू यूनिट है, ये एक्चुअली हेल्प करेगी डायरेक्टली टू NEAC. ये असेसमेंट ऑर्डर जो AU यूनिट ने बनाया है और NEAC ने इसको रेफर किया कि आप इसको रिव्यू करो, तो दैट वुड बी डन बाय द रिव्यू यूनिट. एंड रिव्यू यूनिट हैज द फंक्शन कि मटेरियल और एविडेंस रिकॉर्ड पे आया है कि नहीं आया है, जो रिलेवेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स इन द लॉ है दैट हैव बीन अप्लाइड और नॉट, वेदर all the judicial precedents have been considered or not. These are the functions of the review unit. So giving the overall picture, there is a team based assessment with very minimal error, chances of error or arbitrariness, or I should say the perverse order being shared, because all these persons have their respective PCIT, additional commissioner, ITOs, जो एक तरह से जो एक तरह से यूनिटी की तरह से काम करेंगे और हेल्प करेंगे NEAC को. नाउ कमिंग टू द NEAC. NEAC इज अ पर्सन जो नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी. दैट इज द पर्सन हु विल इशू द नोटिस टू यू. शोकॉज नोटिस भी NEAC के थ्रू ही आएगा. SSC का इंटरफेस केवल NEAC के थ्रू से है और वेरियस यूनिट्स का इंटरफेस केवल NEAC से है. NEAC के अलावा ना डिपार्टमेंट आपको जानता है, ना SSC आपको ना NAC के लेवल आपको जानती है, ना आप AU में कौन बैठा है उसको जानोगे, ना AU आप SSC कौन है वो उनको पता चलेगा. there would be a complete elimination of the biasness or any personal egos or personal subjectiveness in the assessment orders being passed. नोटिस इशू करना इसका काम है NEAC का. और NEAC का एक तरह से नोडल एजेंसी है, तो क्योंकि इसका काम ये है कि गेटिंग द थिंग्स डन, एक तरह से सुपरवाइजर है, मैनेजर का काम करेगा. पेनल्टी लेवी करना फॉर नॉन कंप्लायंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एनी यूनिट. ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर्स को रिव्यू करना, और ये रिव्यू केवल सब्जेक्टिव बेसिस पे नहीं होगा, प्लीज माइंड, ये रिव्यू होगा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो बोर्ड ने बता रखी है, और इवन यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल्स होंगे जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को एग्जामिन करेंगे मशीन लर्निंग के थ्रू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, कि उसमें कोई चेंजेस या उसमें कोई मॉडिफिकेशन सजेशन रिक्वायर्ड है या नहीं. और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली NEAC अपना विजडम अप्लाई करके, जजमेंट अप्लाई करके कॉल लेगी कि आगे क्या करना है.
और जो असेसी के रिस्पॉन्स आएंगे या जो रिपोर्ट्स आएंगी वो एक दूसरे से शेयर करेंगी. इंटरफेस बिटवीन द NEAC यूनिट्स एंड दीज. और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, शो कॉज नोटिस भी असेसी को NEC के थ्रू ही जाएगा. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो NEAC देगी, NEAC देगी थ्रू REAC सेंटर्स. Show cause notice, finalization of assessment order, passing them, these are the functions of NEAC. And then last, after all these things have done, the NEAC would transfer the records to the jurisdictional assessing officer. So having regard to the overall scheme, understood what are the functions, what are the units. Now it would be easier for everyone to understand what is the faceless assessment process is going to be. I start. In the faceless assessment process, first stage is issuance of no notice. That notice would be given by the NEAC. That would be with respect to the certain issues, pinpointed issues for which the assessee's case has been selected for e-assessment or faceless assessment. After that, they would give the assessee is required to give the response within 15 days. Based on the response received by the assessee, the NEAC would assign the case to any AU in the regional e-assessment center. NEAC का, और ये ऐसा नहीं है कि ये असाइनमेंट NEAC अपनी विजडम के हिसाब से करेगी, अपनी डिस्क्रिप्शन पे करेगी. दैट वुड बी थ्रू रैंडम अलोकेशन, ऑटोमेटेड रैंडम अलोकेशन सिस्टम ओनली. सिस्टम के थ्रू ही होगा. अब एक क्वेरी उठती है कि जब NEAC को पता ही है कि किसी भी यूनिट को देना है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि राजस्थान, जयपुर का केस है तो जयपुर कोटा के किसी AU के पास पहुंच जाए या जोधपुर की AU के पास पहुंच जाए. तो प्लीज माइंड, ऐसा नहीं होने वाला है. ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन सिस्टम में पहले से ही फिल्टर लगा दिए गए हैं या लगा दिए गए हैं कि भाई कि अगर एक असेसी इस राजस्थान का है, जिस सिटी का है, जिस एरिया का है, उस स्टेट में तो केस ट्रांसफर नहीं होना है. तो दैट मींस यहाँ पे एक तरह से बाउंड्री लेस असेसमेंट होंगे जो अपॉर्चुनिटी का भी काम करेंगे और आपके लिए भी और असेसीज के लिए भी. अभी ये होता है कि आपका क्लाइंट, ये जरूरी हो सकता है कि योर क्लाइंट जो चेन्नई में रहता है और चेन्नई में रहने पर भी उसका असेसमेंट खुलता है, तो आप उसको हेल्प नहीं कर पाते हैं बिकॉज ट्रैवल कॉस्ट और एवरीथिंग, और चेन्नई के लोकल एओ के पास में रिप्रेजेंट करना, इट इज अ टफ टास्क. आप भी जाएंगे तो आपके भी 2 दिन जाएंगे और ऑल दिस थिंग. बट विथ दिस फेसलेस असेसमेंट प्रोसेस, अगर आपके क्लाइंटल पैन इंडिया बेसिस पे फैले हुए हैं, तो यू कैन बाय सिटिंग इन द जयपुर इटसेल्फ ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और आप उनका असेसमेंट जयपुर बैठ के करवा सकते हैं, और विथ एंड दैट टू बीइंग फेसलेस. सेकेंडली, sir, I will take the questions at the last, and I know there would be many questions, so I have kept my presentation part very for a shorter duration, and I would open the session for questions more. So please wait. And secondly, when the case has been transferred to the AU can ask the NEAC to get the verification done from the verification unit, or seek certain points or certain details from the assessee, or seek the assistance of the technical unit on certain point. This is here the AU would require the assistance of their AU verification unit and technical unit, and also details and the points information is of course required from the assessee. The AU cannot directly send the notice to the assessee. They have to electronically communicate to the NEAC, and NEAC would give all the required information and reports of the verification unit or technical unit to the AU. Once all this has been done, when the verification unit की भी report आ गई उसके पास, technical unit की भी report आ गई, assessee से भी जो जवाब चाहिए था वो मिल गया, then
AU would prepare the draft assessment order and then it will not directly send to the assessee कि साहब draft assessment order बना दिया ये पकड़ो, नहीं. Draft assessment order will be shared with the NEAC और NEAC इस पे अपना रोल एग्जामिन करेगी कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर प्रॉपर है या नहीं है. पर ये सब्जेक्टिव बेसिस पे नहीं होने वाला, ये सब्जेक्टिव बेसिस पे नहीं होने वाला. I said earlier that automated examination tools and the artificial intelligence and machine learning would be used by the NEAC, including the risk management strategy of the board, जो इनका internal communication ही है, उसके basis पे ही NEAC ये call लेगी कि मुझे whether I have to finalize the draft assessment order or whether I have to give the opportunity to assessee for the modifications that the assessee has proposed, or whether I have to assign the draft assessment order to review unit for its review. तो review unit का role जो आएगा वो यहाँ आएगा जब NEAC ये decide करेगी after receipt of the draft assessment order that whether draft assessment order is correct as per and it has to be finalized, or whether अगर assessee के against कोई चीज against कोई issue में addition है तो उसको assessee को opportunity देनी है नहीं, या फिर review unit को assign हो जाएगा. For the time being, जब ये अगर केस review unit को assign हुआ तो review unit will function and review unit can do two things. It can either concur with the draft कि draft जो assessment order है वो बिल्कुल ठीक है, or it can suggest the modification. If the review unit concur with the draft, nothing doing, draft assessment order passed by, sent by the AU is finalized, subject to show cause notice by the to the assessee and getting his response. If the review unit suggests the modification, then अब उस AO के पास वापस नहीं जाएगा कि जिसने modification ही नहीं दिए थे और review unit ने बताया कि ये चीज इसमें ये factual या इसमें legally एक चीज गलत जा रही है. Then review unit will suggest the modifications and on the basis of that, with that modifications, NEAC would transfer to another AU the draft assessment order along with the suggestions or modifications suggested by review unit. अब वो AU unit जो है, जो second AU unit है, वो assessment करेगी और उस assessment में जो draft assessment order है उसको modify करेगी. अब यहाँ एक ये है कि अगर कोई addition propose किया है review unit ने, तो जिस असेसमेंट यूनिट ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर किया था उसको पता ही नहीं है कि एडिशन क्या प्रपोज हुआ. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्कीम. एंड अनदर एयू यूनिट बिकॉज द रिव्यू यूनिट ने वो बोला है तो उसमें ड्राफ्ट सजेशन करेगी एंड देन आफ्टर दैट एनईएसी का ये रोल हो जाएगा कि अगर असेसी के अगेंस्ट की बात है तो अपॉर्चुनिटी दो असेसी को, उसका रिस्पॉन्स कॉल फॉर करो एंड आफ्टर calling for that response, after calling of the response and they will ask the AU unit to incorporate that response and finalize the draft assessment order, and on that basis that final assessment order would be passed. There could be a circumstances there is no adverse against the assessee or assessee has already been given the show cause notice और उसने उसका जवाब भी दे दिया, उसका रिप्लाई भी कंसीडर कर लिया गया है. So in that case, अगर के final order is in line with the suggestions and modifications suggested by the review unit और AU ने भी उस पे work कर लिया है, it will pass the final assessment order, and that would be communicated to the assessee. So this is the stages where at various stages the final assessment order would be communicated to assessee. Now here it is an important point that has been given in the scheme that any unit can levy and propose the penalty for non-compliances. Assessee was given a notice, he did not respond. Even after the repeated reminder, he did not respond. Then any unit may suggest the penalty for non-compliances to the NEAC, and NEAC after considering NEAC after receipt of this proposal or the such suggestion would issue a show cause notice to the assessee. Assessee would give reply to that show cause notice, and after receipt of the show cause notice, the NEAC would give that show cause notice
to the respective unit which proposed the levying of the penalty for non-compliances, and that unit may either drop the penalty for non-compliances or may upheld the penalty for non-compliances. If that is the case, then NEAC, along with the final assessment order, will share the penalty order for non-compliances also. And please mind, when at this stage, when the assessment order is being drafted by the AU, the AU would also propose the penalty that is to be initiated on the basis of the proposed additions. मतलब पेनल्टी का यहाँ पे दो तरह के रोल है. देयर इज अ सर्टेन कंफ्यूजन कि पेनल्टी भी एनईएसी लगा के भेज देगी सर, 270A की भी पेनल्टी लग जाएगी और असेसमेंट ऑर्डर फाइनल हो जाएगा, अपील तो बाद में करते रहेंगे. प्लीज माइंड, दिस इज नॉट सो. द faceless assessment scheme, under this faceless assessment scheme, the penalty would for non-compliances would be confirmed at the assessment stage itself, but the penalty for the additions that have been made or confirmed, that would be like आज होता है कि penalty for misreporting or non-reporting is initiated separately. तो वो असेसिंग ऑफिसर उसका काम रहेगा. तो मैंने पहले भी प्रेजेंटेशन में बताया कि पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का जो रोल है, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन का जो रोल है वो जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर का ही है. सो हियर द रोल ऑफ जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर हैज नॉट बीन आउटस्टेड कंप्लीटली. उसका आज भी रोल है, मैंने बताया था आपको. तो देयर इज नथिंग लाइक कि कंप्लीट ही एब्सेंस हो चुका है रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और रोल ऑफ अ जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर. प्लीज माइंड, अभी तक क्या होता था कि फेस वैल्यू काम करती थी या इन्फ्लुएंशियल वैल्यू काम करती थी कि किसके पास कितना एक्सपीरियंस है. कि एक्सपीरियंस काउंट करता था. यंगस्टर को उसके साथ काफी प्रॉब्लम होती थी कि सर हम तो एओ के पास जा ही नहीं सकते, कि कैसे जाए सर, एओ तो हमको देख के ही भगा देगा, हमसे बात भी नहीं करेगा, और उसको हम कैसे तो केस ब्रीफ करेंगे, कैसे क्या बताएंगे, और हमारे केस में क्या असेसी की ग्रीवेंस है वो कैसे बताएंगे. तो देयर वाज अ यंगस्टर के लिए भी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते थे उनके लिए भी ये काफी प्रॉब्लम रहती थी कि इस चीज को कैसे. तो फेसलेस असेसमेंट इज अ scheme which is a boon, I should say having a opportunities for them. Of course they have to be very vigilant in drafting their responses, because now face value will go, only the case value will be appreciated, and here you have to be very particular about the responses and notices that have been issued to you. आप इसको कैजुअली नहीं ले सकते. ऑन द सेम बेसिस ऐसा भी नहीं है कि सीनियर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका भी रोल खत्म हो गया कि साहब आप वो तो अपीयर होने जाएंगे ही नहीं. सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी रोल इसलिए खत्म नहीं हुआ कि सर उनका जो एक्सपीरियंस है कि एओ किस चीज को समझता है और किस चीज को कैसे समझता है, वो दैट विल कल्मिनेट इनटू द ड्राफ्टिंग. जो ड्राफ्टिंग में वो पुट करेंगे कि ऐसे क्रॉस रेफरेंसिंग करनी है, अपने जूनियर्स को गाइड करके बताएंगे कि आपको ऐसे चार्ट्स बनाने हैं, आपको ऐसे करना है. देन दैट वुड हेल्प द juniors also. So this is not the case कि opportunities खत्म हो चुकी हैं. Of course challenges रहेंगे, थोड़े hiccups रहेंगे, but opportunities हैं. आपका काम कभी कहीं जाने वाला नहीं है. मैंने पहले भी बताया कि सर्वे के केसेस, सर्च के केसेस हैं, इंटरनेशनल चार्जेस के केसेस हैं, वो है. आपका उल्टा टाइम बचने वाला है. I will explain that dynamics and that changes in the subsequent slides. This is final order. Now अब ये एक एक्सेप्शनल केसेस हैं कि पर्सनल हियरिंग इस स्कीम में नहीं है. तो सर पर्सनल हियरिंग तो फेसलेस है, तो फेसलेस तो रहेगा ही. अब इस पे ये भी कह रहे हैं कि सर फेसलेस तो है सर, क्या तो फिर हमें वॉइसलेस भी कर दिया क्या, कि हमारी सुनेंगे ही नहीं. सो प्लीज माइंड, ऐसा नहीं है. अगर आपके पास शोकॉज नोटिस आता है आफ्टर एनईएसी ने जैसे ही शोकॉज नोटिस दिया और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एसएससी के पास भेजा, तो असेसी कैन रिक्वेस्ट कि सर आई वांट a personal hearing because in this case circumstances there are certain points which can be orally explained. There are some explanation which can I orally explain. Maybe my
in my draft I tried to explain, but I could not explain. So regional assessment, e-assessment center की जो unit है, उसका जो chief commissioner और director general in charge है, you have to place request before them. You have to place request before them, and in the exceptional circumstances only, जो board setup करेगी अभी, वो अभी circumstances अभी प्रिस्क्राइब नहीं हुई है कि किन सर्कमस्टांसेस में अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो अप्रूवल देगी फॉर पर्सनल हियरिंग. ऑल्दो दे आर द कंसर्न्स आल्सो कि मैंने तो सर अपना जवाब भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, आपने जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर लिया, ड्राफ्ट शेप दे दिया, उसके बाद मेरे को शो कॉज नोटिस दिया, अब मैं अगर पर्सनल हियरिंग मांगू भी तो उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं. तो दिस पॉइंट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द डिपार्टमेंट. और डिपार्टमेंट जो सीबीडीटी के इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और चीफ कमिश्नर्स हैं या जयपुर के भी और राजस्थान के, उन्होंने ये एश्योरेंस दी है कि सर देयर इज अ वेरी लेस चांसेस कि आपको पर्सनल हियरिंग भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ इतना सिस्टम ड्रिवन और टीम बेस्ड ड्रिवन चलेगा कि आपके अगेंस्ट में तो कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ही होगा कि आपको पर्सनल हियरिंग की जरूरत पड़ेगी. सो अकॉर्डिंगली लेट्स कीप बी इट एज मे बी, हम उनके वर्ड्स को कैरी करते हैं और पर्सनल हियरिंग की जरूरत जब पड़ेगी तभी मांगेंगे. सो अकॉर्डिंगली आई एम नॉट मच डेलिब्रेटिंग देयर हियरिंग, बट ऐसा नहीं है कि आपको पर्सनल हियरिंग मिलेगी ही नहीं. यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आपको पर्सनल हियरिंग किन सर्कमस्टांसेस में चाहिए. वीडियो टेलीफोनिक के थ्रू होगी, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. और जहां पे फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो बोर्ड ने ये बोला हुआ है इस स्कीम में कि दे विल एस्टैब्लिश द सेंटर्स वेयर द वीडियो पर्सनल हियरिंग कैन बी अरेंज थ्रू देयर सेटअप्स. मतलब पर्सनल हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो कैसे करेंगे. सो अभी तक सबसे बड़ा जो चैलेंज है पर्सनल हियरिंग का ये आ रहा है प्रोफेशनल्स के सामने, वो ये है कि सर असेसमेंट की जो फीस होती है ना, वो हमारी पर्सनल हियरिंग के बेसिस पे तो डिसाइड करते हैं हम, कि अदरवाइज हमारे रिप्लाईज के बेसिस पे तो क्लाइंट तो क्या तो फीस देगा हमें. सो दिस इज अ कंसर्न और द चैलेंज. सो प्लीज माइंड बिकॉज इज अ चेंज, आपको अपना वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ प्रोफेशनलिज्म भी चेंज करना पड़ेगा. यू हैव टू गिव वैल्यू टू योर ओरिजिनल स्किल्स. आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. सर नो डाउट we have these are faceless assessment, but we have to show our value through our drafts, through our case preparation. क्योंकि एक चार्टेड अकाउंटेंट नहीं जानता है कि एओ के पास क्या तो डॉक्यूमेंट देना है और क्या डॉक्यूमेंट नहीं देना है, और कोई डॉक्यूमेंट देना भी है तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो असेसी कभी भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कर दे. ऑफकोर्स वो किसी को एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉय करेगा, दैट वुड बी our professional brother only, chartered accountant. So given the time आपकी एनर्जी सेव हो रही है पर्सनल हियरिंग की, तो इसको आई वुड रिक्वेस्ट यू वुड अदर एवेन्यूज में इसको एक्सप्लोर कीजिए एंड ट्राई टू डू गेट द नॉलेज अपग्रेडेशन. आप इनकम टैक्स लॉ पढ़िए, आप उसके अंदर आपके जो इश्यूज हैं उसके बेसिस पे इसको यू गेट मोर अपडेटेड, तो आपका इंटेलेक्चुअल वैल्यू एडिशन भी के लिए भी आपको टाइम मिल रहा है. सो कमिंग टू द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, नाउ मेन आई हैव हाइलाइटेड, आई हैव डिस्कस्ड मेनी थिंग्स, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, बट आई हैव समराइज्ड देम एंड टू कंक्लूड आई वुड से द अपॉर्चुनिटीज अगर क्या आपने देखनी है तो सबसे पहले आपको ये इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल एंड वर्सेस फिजिकल. फेस वैल्यू, केस वैल्यू आई हैव एक्सप्लेन्ड कि आप कितना अच्छा केस प्रिपेयर करते हैं, दैट विल गिव यू द रेवेन्यू, दैट विल गिव यू द रिकॉग्निशन, रादर देन कि आपका डिपार्टमेंट में कितना अच्छा फेस है. ऐसा नहीं है कि आपके फेस वैल्यू की आपकी फेस वैल्यू खत्म ही हो गई, बट इट हैज अ वैल्यू. आप अदर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, आप अपनी फेस वैल्यू आईटीटी ट्रिब्यूनल में एक्सप्लोर कर सकते हैं रादर देन इन द लोअर अथॉरिटीज. सेकेंडली, automation tools, 360-degree analysis are more important. So अब आपको भी आपके ऑफिसेज में ऑटोमाइजेशन और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज डिपार्टमेंट ने तो अपने लेवल पे खूब कर लिया है. तो आप भी ये नहीं कर सकते कि
आप बिना किसी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन के ही रहें और आप एसएससी की केवल इंफॉर्मेशन जो एसएससी दे रहा है उसी पे ही रिलाय करें। आपको अपना भी रिकॉर्ड एसएससी का जो आपके पास है उसको एनालिसिस करने की भी जरूरत है, वो भी थ्रू द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिकॉज आज अगर मैं एग्जांपल दूं, कंप्यूटेक्स अपन यूज करते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के लिए या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में आपका पुराना रिकॉर्ड तो रहता ही है, लेकिन उसमें उसका एनालिसिस कभी नहीं है। तो जो वेंडर्स हैं उनके लिए भी आप यू हैव टू सीक द इंफॉर्मेशन दैट मुझे एनालिसिस दे एसएससी की इंफॉर्मेशन का वेयर द ट्रेंड इज गोइंग, अदरवाइज दैट इज द थिंग। आपको वे ऑफ डूइंग इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द रिस्पॉन्स, ये थ्रेट है सबसे बड़ी। फिजिकल में तो आपने रिप्लाई 2 दिन बाद दिया, 4 दिन बाद दिया, तो भी वो रिकॉर्ड पे ले लिया जाता था या फिर उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती थी, डायरी ओपन है तो बैकडेट में भी हो जाए। अब आपको रिस्पॉन्स को बहुत केयरफुली सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब आप रिस्पॉन्स डालेंगे तो उसकी एक हैश वैल्यू जनरेट हो जाएगी। उस हैश वैल्यू जनरेट होने के बाद यू कैन नॉट चेंज दैट सबमिशन। सो सबमिशन ड्राफ्टिंग, सबमिशन की फाइलिंग, इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें। आपके सीनियर से बैट होनी चाहिए। डिपार्टमेंट टीम बेस्ड असेसमेंट कर रहा है तो वी हैव टू बी टीम बेस्ड असेसमेंट, हमें भी करवाना भी, हमें भी डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अपने बीइंग अ प्रोफेशनल ब्रदर्स हमें हेल्प लेनी चाहिए। और हो सके तो ऐसा नेटवर्क भी बना सकते हैं कि वी गेट द आवर drafts vetted through a senior or a person who is having the experience so that client को value मिल सके। This could be done. Secondly, अब मैंने पहले ही बताया कि यंगस्टर्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि उनका एक तो नया लॉ पड़ा हुआ है, उनको अब ये दिमाग नहीं लगाना कि असेसिंग ऑफिसर कौन है क्या नहीं है। पहले प्रैक्टिस शुरू करने के बाद ही ये स्टार्ट करना होता था कि हु इज द असेसिंग ऑफिसर, उसका बिहेवियर कैसा है, एटलीस्ट वो तो जान ले, ताकि उसके हिसाब से ही असेसी का असेसमेंट कराने नहीं कराने बात की बातें हैं। प्रोफेशनल का रोल ऐसे बढ़ जाएगा कि मैंने पहले भी बताया कि फिजिकल में तो आपने जो सबमिट कर दिया, हो सकता है असेसिंग ऑफिसर देखे भी नहीं, बाद में जब ऑडिट में आएगा तब की बात तब है। पर अभी आप जो दे रहे हैं दैट हैज टू बी वेटेड, दैट हैज टू बी प्रॉपर्ली वेरीफाइड, क्योंकि उसको वेरीफाई करने के लिए भी वेरिफिकेशन यूनिट अलग है, उस पर टेक्निकली उस पर कोई व्यू लेने के लिए टेक्निकल यूनिट अलग है। तो आपको ये चारों के रोल आपको अपने लेवल पे लेने पड़ेंगे। यू हैव टू बी वेरी कॉम्पिटेंट, you have to be very competent, you have to excel in your skills, you have to excel in the income tax act कि सर वहां 4 लोग बैठे हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं भी यहाँ पे 4 लोग बैठा हूँ। I would be more competent because मुझे मेरे पास तो अब टाइम मिल गया ना, कि मुझे वेटिंग टाइम भी बच गया ना मेरा। तो that is the thing, आप you have to be very aggressive in your roles while dealing with the faceless assessment. And of course now intelligent and objective assessment होंगे। तो सब्जेक्टिविटी तो गई कि मैं क्या कहता हूँ, असेसी क्या कहता है और डिपार्टमेंट क्या कहता है, एओ क्या कहता है, वो सब गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग डिसाइड करेंगे कि आपका रिस्पॉन्स सही है कि नहीं है। दैट इज द थिंग। सो वी हैव टू बी वेरी रेडी। नाउ डिजिटल और फिजिकल में ये जो चैलेंजेस हैं, यहाँ पे आप अडेप्ट करके यू कैन grab the opportunity. Now I have already covered up these opportunities and changes, but to summarize I would give few pointers in a summary so that it can the things can be recalled. I said no more waiting time. पहले यही होता था कि डिपार्टमेंट में एओ के सामने बाहर खड़े ही हैं, जब बुलाएगा तब जाएंगे, तो दैट टाइम गो। पहले करके ये 3 बजे बुलाता था तो 3 बजे जाना होता था, 4 बजे जाना बुलाता था तो 4 बजे जाना। अब कोई टाइम लिमिट की बाउंडेशन नहीं है। आपको जो प्रिस्क्राइब टाइम दिया गया है उसके अंदर ऑफिस में बैठे बैठे रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, और केस की प्रिपरेशन भी आप ऑफिस में बैठ के ही कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग स्किल्स ऑफ कोर्स आपको हो सकता है प्रोफेशनल्स को कुछ कोर्सेज भी करने पड़े टू गिव द डिलीवरी टू देयर क्लाइंट्स। प्रिसीजन वुड ओनली प्रिवेल। आपको प्रेसी राइटिंग, बिल्कुल प्रिसाइज आंसर्स देने होंगे, डिटेल सबमिशंस जो प्रैक्टिकली
डिटेल सबमिशन ऑल केसेस में नहीं चलेंगे कि डिपार्टमेंट का फोकस्ड पॉइंट होगा और फोकस्ड पॉइंट पे उनकी फोकस्ड आंसर दे वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. रोल ऑफ द चेंज इन द रोल ऑफ द सीएस का रोल चेंज हो जाएगा, रादर देन ऐसा नहीं है कि सीए रिप्रेजेंटेशन का ही वर्क करता है. दे कैन नाउ बी अ मोर ऑफ इन द नेचर ऑफ कंसल्टेंट. अब ये कंसल्टेंसी केवल ऐसा नहीं है कि यू हैव टू गिव टू द असेसी और द क्लाइंट्स ओनली. दिस कंसल्टेंसी कैन बी टू द डिपार्टमेंट ऑल्सो, बिकॉज डिपार्टमेंट को भी एक टारगेट दे दिए गए हैं कि आपको टैक्स पेयर्स को अवेयर करना है, इन्फॉर्म करना है. तो डिपार्टमेंट कैसे इन्फॉर्म करेगा? बिकॉज एक सीए की रिप्रेजेंटेशन टू द क्लाइंट्स, टू द टैक्स पेयर वुड क्रिएट मोर वैल्यू टू देन टू द डिपार्टमेंट ऑफिशियल. अगर कि आज एक सीए एक बॉडी को रिप्रेजेंट करे और टैक्स पे फेसलेस असेसमेंट के बेनिफिट्स और इनकी जो अपॉर्चुनिटीज है ये बताए, तो टैक्स पेयर की रीच, टैक्स पेयर को ज्यादा जल्दी से समझ में आएगा रादर देन डिपार्टमेंट. So this is kind of a role the CAs can play. Of course, licensing would go, advisory and consultancy work would be given, and team-based role of CAs I have already shared that 4 यूनिट टीम मिलकर काम कर रही है, तो 4 CA भी टीम मिलकर ही असेसमेंट कराएं तो वो ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा, अपॉर्चुनिटीज देगा. That is the there. And one more opportunities which I could perceive that assessment normally डिपार्टमेंट का एश्योरेंस ये है कि that assessment would be to the best of the assessee's benefit, but adverse assessment भी हो सकते हैं. Say for example आपका केस काफी कॉम्प्लेक्स है, so in that cases instead of going to the normal channel आप सेटलमेंट कमीशन के चैनल को भी यूज करते हुए अपना असेसमेंट केस सेटल करवा सकते हैं. So that is a separate alternate channel of assessment. बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन that is also another avenue that CAs can explore. And third, that no geographical boundaries. मैंने बताया चेन्नई में का भी आपका अगर क्लाइंट है तो आप उसका असेसमेंट करवा सकते हैं. Even this has helped me. I must share my personal experience. I had a client in Patna who sold a property in Patna, and he's living in Kolkata. His assessment got reopened in Patna. अब वो पटना में असेसमेंट कैसे करे? बट ही हैड अ फेथ इन मी, सो ही सेड यू हैव टू डू द असेसमेंट. एनी हाउ लास्ट ईयर उनका असेसमेंट तो करवा दिया, बट अब क्योंकि फेसलेस अपील्स भी होनी है तो देयर इज अ लिमिटलेस, दिस इज अ लिमिटलेस ज्योग्राफिकल. आई डू नॉट हैव ए हेजिटेशन कि सर आपका चाहे पटना में हो, चेन्नई में हो, कोलकाता में कहीं भी अपील हो, आई वुड बी एबल टू अटेंड दैट, आई वुड बी एबल टू रिप्रेजेंट दैट. So these are the geographical boundaries जो eliminate हो चुकी हैं, वो एक तरह से opportunities के रूप में आपके सामने आई हैं. Of course आपको अपना नेटवर्क भी बनाना पड़ेगा, नेटवर्क फर्म्स आपको बनाने पड़ेंगी, क्योंकि सारा काम तो अब दिल्ली वालों ने ले लिया है, दिल्ली से कंट्रोल हुआ है. तो I should say कि आपको दिल्ली में maybe you may require to have an office or a network firm or maybe your setup, so that at least you get the things developed therein for new opportunities. क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन का चार्ट जो दिल्ली में ही है, तो वहाँ प्रैक्टिकली वहीं पॉसिबल हो पाता है. So that is the thing one can explore. And of course expeditious disposal of case. मैंने बताया कि अगर डिस्पोजल जल्दी होंगे तो अपील भी जल्दी होगी, अपील जल्दी होगी तो रिलीफ भी जल्दी मिलेगा, रिलीफ नहीं भी मिला तो एटलीस्ट आगे के केसेस में ट्रिब्यूनल तक जाने में या हाई कोर्ट तक जाने में टाइम जो लगता था आज तक वो रिड्यूस हो जाएगा. एंड एट द लास्ट थ्रेट्स. आप थ्रेट्स तो क्या ये चैलेंजेस हैं कि आपको टाइमली डिलीवरेबल्स देने पड़ेंगे. एडजमेंट पॉलिसीज जो चलती थी दैट विल नॉट डू. एंड ऑफ कोर्स आप, मैंने पहले भी हाईलाइट किया, फीस स्ट्रक्चर आपको चेंज करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू बी प्रिसाइज कि आप किस चीज का फीस चार्ज कर रहे हैं. आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ओके आई एम चार्जिंग फीस फॉर दिस एस्पेक्ट, दिस वैल्यू एडिशन व्हाइल फाइलिंग रिप्लाई टू योर ड्राफ्ट. चैलेंज ये भी है कि फैक्ट्स में चेंज नहीं हो सकता कुछ, तो आपको वेरी प्रिसाइजली वेरीफाई करके आपके सबमिशन बनाने पड़ेंगे. फेस वैल्यू का आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट फेस वैल्यू विल नॉट हैव मच इम्पैक्ट रादर देन योर केस वैल्यू, and fair representation of your
case in the form of written letters, black and white. अब ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ही होंगे, सब्जेक्टिव असेसमेंट का नहीं रहेगा. सब्जेक्टिव असेसमेंट से मीनिंग ये है कि मैं व्हाट इज द व्यू ऑफ द असेसी एंड व्हाट इज द व्यू ऑफ डिपार्टमेंट. तो पहले थोड़ा बायसनेस चलती थी, कभी असेसिंग ऑफिसर नाराज हो गया तो वो हाई पिच्ड असेसमेंट्स कर देता था, और अगर वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई रहता था तो असेसमेंट काफी लो पे होते थे. टेक्निकल ग्लिचेस रहेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो दीज आर ओनली द इनिशियल हिकअप. आपको टेक्नोलॉजिकली आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा. आई हैव सीन वन सीए's ऑफिस इन दैट दे आर यूजिंग सम सॉफ्टवेयर. फेसलेस असेसमेंट के आते हैं, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर ले लिया. उस सॉफ्टवेयर वो क्या करता है, जितने भी रिस्पॉन्सेज जाते हैं उनका पूरा डॉक्यूमेंट मैनेज करता है, और जब क्लाइंट को बिल रेज करते हैं तो क्लाइंट को बिल रेज करने के साथ में वो एक पूरी पीडीएफ फाइल बना के भेजते हैं कि सर हमने आपके असेसमेंट में ये रिप्लाई फाइल किए हैं, और ये रिप्लाई फाइल करने के बाद ये शो कॉज नोटिस है, ये पूरा ट्रैक है, आप इसको चेक कर सकते हो. हमने जो आपका काम किया है वो डिलीवरेबल्स इस एक पीडीएफ फाइल में है. तो ऑब्वियसली आपको इस तरह की स्ट्रेटेजीज, इस तरह के डेवलपमेंट्स करने पड़ेंगे, रादर देन आपको जो अभी तक ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग द असेसमेंट था उससे थोड़ा गिव अप करना पड़ेगा. एंड I think I need not to elaborate that, but I'm just skipping this, and I think I have there would be more questions, but for next 5 minutes I'm just covering this stages में क्या changes हुए हैं, क्योंकि आपको changes करने पड़ेंगे. Stage 1 normally assessment में होती है, तो you have to be very, आपको assessment का notice विल्डे ही कभी ईमेल पे मिलता था, अब ईमेल पे ही मिलेगा, टैब पे मिलेगा, मोबाइल ऐप पे मिलेगा. तो जब असेसमेंट स्टार्ट होता है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही इलेक्ट्रॉनिक है, तो दैट इज द थिंग. और आपका जो एक ही असेसिंग ऑफिसर है एनईएसी, आपका जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को भी भूल जाओ. नाउ डिलीवरी ऑफ नोटिस मैंने डिटेल में कवर किया. स्टेज 2 में जब नोटिस डिलीवर हो जाता था उसके बाद आपकी प्रिपरेशन चालू हो जाती थी. तो डिलीवरी होने का प्रिपरेशन करने के लिए अगर टाइम भी लगता था तो आप ये कहते थे कि मेरे को लेट डिलीवर हुआ. ओके, दैट विल गो. ऑनलाइन प्रोसेस होनी है तो सेम डे, जिस दिन नोटिस 13 तारीख को 5 बजे इशू हुआ, आपको 5 तारीख को ही मिलेगा. So you have to be very vigilant. You have to be very excellent in getting the things done and preparing the case. अब असेसमेंट होने के बाद, नोटिस इशू होने के बाद आपको बैक ऑफिस प्रिपरेशन चल देती है. बैक ऑफिस प्रिपरेशन में आपके केस के कंपाइलेशन होते थे, इंफॉर्मेशन कोलेट होती थी, वो चीजें तो आज भी रहेंगी. उसके अलावा एक टैक्स मैनेजमेंट भी होता था, लेकिन अब टैक्स मैनेजमेंट जो होता था वो तो भूल जाओ. अब ये टैक्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको कि पोर्टल पे नोटिस आया है या नहीं आया है, आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा. ईमेल्स आपको चेक करने पड़ेंगे. यू कैन नॉट टेक अ प्ली कि सर मेरे ईमेल पे तो सर हजारों ईमेल आते हैं तो मैं तो कितने चेक. तो दैट इज द थिंग ऑफ मैनेजिंग द टैक्स अफेयर्स. You have to give the tax management practices to your. आप tax management practices भी सर्व कर सकते हैं अपने clients को. That is a new area of opportunities. And infrastructure और document management आपको manage करने पड़ेंगे. Now, then the challenge is that after the all things, मैंने जब submission लेके जाता था तो मुझे पता चल जाता था कि AO के पास के mind में क्या चल रहा है, या उसकी कोई query भी होती थी कि साहब ये तो आपने बता दिया लेकिन ये चीज मेरे को नहीं समझ में आई, तो उसका एडवर्स व्यू भी पता चल जाता था. और इसके लिए वो 4 चीजें पूछ लेता था तो खुद ही बता देता था कि 2 चीजें ये और ले आओ. अब आपने तो अपनी तरफ से ये जवाब दे दिया, लेकिन एओ और भी कोई चीज मांग रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा. तो दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट इन दिस काइंड ऑफ स्कीम. बट एट द सेम टाइम आपको आपका एक्सपीरियंस काम आएगा कि व्हाट आई हैव टू डू और व्हाट आई हैव टू. ऑफ कोर्स यंगस्टर्स के लिए, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए थोड़ा इस पॉइंट पे they would be having a lack of experience, but of course with the sooner or later they will be having the edge on this also. और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हियरिंग इसी के थ्रू होगी. जैसा आज हम कनेक्ट हुए हैं वैसे ही असेसमेंट के टाइम पे अगर कि आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो आप असेसिंग अथॉरिटीज के साथ में कनेक्ट होंगे. फाइनल ऑर्डर जो चेंज हुआ है, फाइनल ऑर्डर डिस्कशन हो जाते थे तो पता चलता था कि क्या आना है क्या आना है, उस हिसाब से अरेंजमेंट भी हो जाते थे. लेकिन अब फाइनल ऑर्डर आपको पता चलेगा, ऑफिशियली पता चलेगा, वो ये पता चल जाएगा कि
ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ईच केस में आपको पास मिलेगा। पहले ड्राफ्ट असेसमेंट प्रोसेस जो स्कीम में था वो केवल फॉरेन कंपनीज के केस में 144C में जब टीपी एडजस्टमेंट्स होते थे वही स्कीम में दिया हुआ है इनकम टैक्स लॉ में। अब ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आपको हर केस में मिलेगा। तो यू विल बी नोइंग कि मुझे आगे की क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे करना है। सो एंड इवन यू कैन शेयर दिस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर विद योर क्लाइंट कि सर दिस इज गोइंग टू बी योर assessment, although I will request for the personal hearing and I will try to do the needful at the best for your best, but this is the additional advantage in this scheme. और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के पास ट्रांसफर होंगे रिकॉर्ड तो फिर ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर का रोल आ जाएगा। पहले ज्यूरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर का रोल शुरुआत से रहता था, तो दैट इज द चेंज मैंने पहले बताया। एंड इन नेक्स्ट 5 मिनट्स फेसलेस अपील्स के लिए इतना से ही बताना चाहूंगा कि अभी कोई स्कीम प्रॉपर्ली एसओपीज आए नहीं है। 25 सितंबर को स्कीम लाने वाले हैं, लेकिन लॉ में प्रोविजन इन 2 सेक्शन में दे दिया गया है, 256B एंड 256C, जहां पे इन्होंने सिमिलर प्रोविजन लाइक 143(3)A एंड 143(3)B के हिसाब से दिया है कि to bring the efficiency, transparency and accountability, they will bring the faceless scheme of faceless appeals and faceless penalty. Faceless penalty के लिए 274(2)A में notify करेंगे उस चीज को। तो please mind, sooner or later the faceless assessment, faceless appeals, faceless penalties, that is going to be a reality. So we have to be ready for this. We cannot go on opposing it. Rather, we should go on the front that we should welcome it with the changes by adapting ourselves, by making us competitive, by making us more competitive and more reliable person for the assessee and for the client, our clients, to answer, to make them happy. So this is the change, and I think it is a new Pandora box opened for opportunities and with the initial hiccups, and that will ultimately benefit the professional community. With this, I end my session, and if there are any questions, one can ask, and I would be happy to answer that. अगर किसी भी के कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिखना चाहे तो वैसे लिख सकते हैं। Sir, I would request participants to raise their hands, and then they would be unmuted. Otherwise, it will create a chaos. अमन जी आपका रेज हैंड है, बट आपके यहाँ ऑप्शन ही नहीं आया ऑडियो का। ठीक है। Yes, Ramavtar Sharma ji, I think, is asking some question. No, I am not asking. I am making compliment that you have very beautifully explained the things. There is no query coming from the participants. That's all. Sir, thanks for your appreciation, sir. But it may so happen that participants are not raising any query because most of the have already read this scheme and they have already gone through the scheme very well. So they are already understanding what is the pros and cons of this scheme. और कुछ तो क्या काम करेंगे ना साहब, तब पता चलेगा कि इसमें क्या डिफिकल्टी आने वाली है। कोविड का अभी जैसे हुआ तो अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये किसी को पता भी था कि जूम भी कोई चीज होती है। सही बात है। तो इट इज इसी तरह से होना है। If there are any queries, राजकुमार जी आपके चैट बॉक्स में थोड़ी कोई क्वेरीज आई है? आप नहीं सर, अभी तक कोई
एक कोई रवि पवार जी ने पूछा है चैट में, हाउ कैन वी मैनेज notice if there are no email ID? सर यहाँ कुछ मैनेज करने का है ही नहीं सर। आपने अपना ईमेल आईडी पैन कार्ड देते हुए दिया होगा, इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे दिया होगा, इनकम टैक्स रिटर्न के आधार में दिया होगा, एमसीए के डेटाबेस में दिया होगा, तो किसी भी ईमेल आईडी पे वो भेज सकते हैं। तो देयर इज नो क्वेश्चन कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं था तो मेरे पास नहीं आया। और इवन अदरवाइज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस अलर्ट आ जाएगा। सो नाउ देयर इज नो चांस कि कोई इम्प्रॉपर सर्विस हो। प्लीज माइंड, मैंने पहले भी कहा कि सर्विसेज अब ऑनलाइन ही होंगी, तो आप अपने क्लाइंट्स को क्लियर बता दें दिस इज द चेंज, दिस इज द चेंज। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब अपडेट रखें, बिकॉज आप ये प्लिया कभी नहीं ले पाएंगे कि सर दैट वुड यू वुड बी इन ट्रबल कि अगर कि आपने अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं करवाया, यू वुड बी इन ट्रबल। आपके पास हेल्पलेस रहेंगे, आपका असेसमेंट 144 में हो जाएगा और पेनल्टीज भी लग जाएंगी और फिर आप अपीलों में ही लड़ते रहेंगे। तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ही लगनी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट कैन नॉट बी डन और दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड थ्रू अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। आई थिंक सर कि कोई क्वेरी है नहीं मेंबर्स की। I thought I opened the session for queries so that some more additional points could be shared, but I think that are not coming. So I am just saying that कुछ रूमर्स भी चल रही हैं, क्योंकि अब स्कीम आई है तो कि साहब NESE 143(2) का नोटिस इशू नहीं कर सकती बिकॉज वो असेसिंग प्रिस्क्राइब अथॉरिटी नहीं है 143(2) में। तो सर वो एक रूमर ही है और कुछ नहीं है। आई मस्ट क्लैरिफाई कि NESE को कॉन्करेंट जुरिडिक्शन दे दिया है और असेसिंग ऑफिसर में उसको कॉल कर दिया है। So NESE can very well do your faceless assessment. एक सगुन गोयल का डेटा है कि सीओपी मैंडेटरी है क्या फेसलेस असेसमेंट के लिए? सर 288A एक सेक्शन है जिसमें ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन दी हुई है। उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में ये बताया हुआ है कि हु कैन बी द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। देयर आर the employee of a person can be an authorized representative and also and authorized representative। अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं केस को then you require a COP। अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्स सबमिट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स आप सबमिट ऑन बिहाफ ऑफ असेसी कर सकते हैं, लेकिन उसके पोर्टल पे ही करेंगे तो डिजिटल सिग्नेचर उसी का ही लगेगा। सिर्फ नॉन पे जैसे आपने बताया ईमेल आईडी को पैन से उठा लिया हो, पर कई बार प्रॉपर्टीज के लिए केसेस होते हैं उसमें पैन नंबर भी नहीं होता, सिर्फ एड्रेस होता है, तो वो केसेस कैसे होंगे? नॉन पे कैसे पैन नंबर नहीं होता? सर जिन केसेस में पैन नहीं है, नॉन पैन केसेस हैं, उनके केसेस के लिए अभी ये नहीं है। इनके लिए डिपार्टमेंट को नोटिफाई किया है, उसके लिए ये क्या चेंजेस आते हैं, बिकॉज रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट तो होना ही चाहिए टू डू दैट ई पोर्टिंग ई असेसमेंट। और नॉन पैन केसेस वही होते हैं जो असेसी रिटर्न ही फाइल नहीं करते। तो उन केसेस में नॉर्मली केसेस में 148 की प्रोसीडिंग्स ही होती हैं। आपको 140 वो जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ही इशू करता है। तो उन केसेस में ऑब्वियसली वो प्रोसेस अभी डिपार्टमेंट हैज टू कम विद दैट, अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है। राजकुमार जी, और कोई क्वेरी आपके पास आई है? नहीं सर, अब ये और कोई क्वेरीज है नहीं मेरे हिसाब से। क्वेरीज तो सर कोई क्वेरी अगर आएगी तो देन यू विल शेयर विद यू सर, हम मेल के ऊपर जैसा भी होगा मेल के ऊपर अपन देख रहे हैं। Definitely. If you have any directly email me and I will be happy to answer them. Thank you Mukesh ji for enlightening us.
ऑन फेसलेस असेसमेंट, आपने इतना विस्तार से हमको समझाया कि किस तरह से आगे जाके जो फेसलेस असेसमेंट और अपील्स है वो होने वाली है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया जयपुर ब्रांच के लिए। एंड फेसलेस था और फेसलेस के अंदर ही आज हम लोग जितने वेबिनार में हुई जस्ट लाइक फेसलेस वीडियो पूरी आई थिंक स्पीकर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बट सर एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, ये जो वेबिनार की जो ज्वाइन करते हैं वो लोग सिर्फ इसी में ज्वाइन करते हैं। एक तो यहाँ होता है कि लोग घूमते रहते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन आई थिंक थोड़ा ज्यादा होता है ऑनलाइन। सर आप देखिए ना सर, फेसलेस या कोविड ने हमने क्या क्या सिखा दिया। आज ब्रांच में सीपीज होती हैं, वहां पार्टिसिपेशन नॉर्मली इस वजह से भी नहीं हो पाता था कि लोकल बंदा नहीं है या फिर कन्वेंस या ऑफिस टाइमिंग्स और कई चीजें हैं। अब क्योंकि ये चीजें ऑनलाइन हुई हैं तो ऑनलाइन में कोई कहीं से भी अटेंड कर रहा है और ही नीड नॉट, आप घर में, आज मैं अपने घर में बैठ के ये कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ। आई मस्ट टेल यू, मैं 2 दिन से एक तरह से मेरा मूवमेंट बहुत कम चल रहा है। आई एम नॉट मूविंग, मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन नो डाउट मैं आराम से कर पा रहा हूँ क्योंकि चलने के लिए डॉक्टर ने मना किया, बोलने के लिए मना नहीं किया। So nice of you. एडवांटेज, अदरवाइज दैट कुड हैव बीन द केस कि सर मैं आज ब्रांच नहीं आ सकता, मैं आपका प्रेजेंटेशन नहीं ले पाऊंगा। तो दैट इज द एडेड एडवांटेज ऑफ दिस सोशल डिस्टेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी, आई मस्ट से। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you again. Thanks to all participants. Thank you very much.